Hello, aspirants. So, today we'll discuss one question from GS1. GS1 means 2021. This year's means 2021. And the question is evaluate the nature of Bhakti literature and its contribution to Indian culture. It's a 10 marker question. इसमें आपको we have to write the answer in 150 words. Right. So, सबसे पहले we have to decode the question कि what does the question is asking about, right? What is that we have to write, because more than 50% of the time हम लिख के आते हैं, we know about things but we didn't hit the bullseye, right? हम वो नहीं लिखते हैं जो आंसर में पूछा रहता है. We didn't follow the directive. So सबसे पहले इसका जो डायरेक्टिव वर्ड है that is evaluate, right? So what does evaluate means? क्या मतलब है इसका evaluate का? So as per Google, it's evaluate का मतलब होता था study of facts and then form an opinion about something. मतलब इस आंसर में you have to give a lot of facts, right? आपको बहुत सारे facts देने हैं with respect to nature of Bhakti literature and with respect to contribution to Indian culture, with respect to its contribution, right? So we have to write pros and cons of a given statement backed by evidence. In every evaluate question, mark it कि you have to write pros and cons, right? Pros आपको लिखने हैं plus cons लिखने हैं of the statement. And I don't know कैसा this question seems like a very easy in the lot जो इस बार मेंस में पूछा था, but if you are missing this pros and cons वाला angle, then I don't know कि आपको अच्छे marks नहीं मिल सकते, right? So what should be the structure में we have to define the Bhakti literature, its time frame or saints or location or examples. Then body, we have to present what is the nature of Bhakti literature and its evaluation and contribution to Indian culture and its evaluation, and in conclusion how it is making our Indian culture composite based on spirit and of humanism, localism and devolutionalism. So let's jump straight away to the answer. So in introduction, we can introduce by giving a broad view, broad definition of Bhakti literature and how it is, what it represents, right? But Bhakti literature represents the literature of devotional saints and Sufis who challenged the orthodoxic, ritualistic and divided society of their time in order to promote love, unity, brotherhood, equality as devotion to God. Right. So your definition, you can made any definition, but the thing is these are the key points. आपको उसके बाद एग्जाम्पल देना ही देना पड़ेगा कि हाउ अलवर्स ने दिव्य प्रबंधन लिखी थी, नयानाज ने तिरुमुरई लिखी थी, कबीर का बीजक, देन गुरु नानक जी का गुरु ग्रंथ साहिब, मीराबाई के भजन्स, बाबा फरीद की सूफी पोएट्री, राइट? सो दिस होल सेक्शन केम इनटू योर इंट्रोडक्शन. आप भक्ति लिटरेचर की कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट आप कोई एग्जाम्पल्स जरूर देना. विदाउट एनी एग्जाम्पल दिस डेफिनेशन विल नॉट बी कंप्लीट, राइट? सो नाउ द सेकेंड पार्ट जो मेन कोर पार्ट है, बॉडी. सो रिमेंबर जब भी इवेल्युएशन का क्वेश्चन आए तो दिस शुड बी योर फ्रेमवर्क, राइट? कि जब भी कोई इवेल्युएशन का क्वेश्चन आए, वी हैव टू राइट प्रोज, वी हैव टू राइट कॉन्स, एंड वी हैव टू लाइक गिव फैक्ट्स. ये आपके फैक्ट्स आ गए, राइट? एंड ये आपका प्रोज एंड कॉन्स, ये आ गए आपके ओपिनियन, और यू कैन से इवेल्युएशन जो आपका इवेल्युएशन है, राइट? सो वी विल राइट ऑल द फीचर ऑफ भक्ति लिटरेचर्स. भक्ति लिटरेचर का नेचर कैसा था? इगैलिटेरियन पिच टू सोसाइटी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में था, मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वननेस ऑफ गॉड, फाइटिंग सोशल इल्स, यूज ऑफ फोक म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट. अब इस राइट, बस इसमें दिक्कत क्या है? अब आपने ये लिख दिया बट दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट. इसमें आपको यू हैव टू कोट एग्जाम्पल्स ऑल्सो, कि एग्जाम्पल्स सबका मालिक एक, वननेस ऑफ गॉड में सबका मालिक एक साईं बाबा, ही इज ऑल्सो भक्ति सेंट, राइट? एंड वर्नाकुलर में यू कैन से कि अवधि में कबीरदास जी का था, देन असामीज में था, देन मराठी में थे हमारे बहुत सारे सेंट्स. फिर ऐसी मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी था, इगैलिटेरियन पिच टू सोसाइटी था, फिर यूज़ ऑफ फोक म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट था, इसमें मीराबाई का एग्जाम्पल है, राइट? सो प्रोज क्या है इसके प्रोज क्या क्या थे? सो सबसे पहले तो प्रोज था कि कॉमन कीर्तन होते थे, कम्यून्स होते थे, लंगर होता, तो इस वजह से सोशल इनइक्वालिटी, सोशल बैरियर्स
को इसने रिड्यूस किया है। फिर ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इसका प्रो है इसकी नेचर का। देन इंक्लूसिव इन नेचर की सेल्वेशन, पहले क्या होता था कि सोशल हायरार्की बड़ी स्ट्रिक्ट थी, लोअर कास्ट अपर कास्ट में था, तो वुमेन्स को राइट नहीं थे पूजा के, राइट, मंदिर के में जाने के, सो वुमेन्स अनटचेबल्स, इंक्लूसिव नेचर था इसका। तो ये सारे क्या कहते हैं इसके प्रोज है। एंड कॉन्स क्या थे कि इसमें नो पॉलिटिकल अवेकनिंग, पॉलिटिक्स पे कोई बात नहीं की थी। फेल टू ब्रेक द ऑर्थोडॉक्स कल्ट, स्टिल मतलब बहुत सारे इल्स अभी भी प्रेवेलेंट है, लाइक, राइट। फिर नो मेजर इम्पैक्ट ऑन सोशल मोबिलिटी, ऑल्दो थियोरेटिकली इट वॉज वेरी साउंड बट प्रैक्टिकलिटी में मिस कर रहा था, प्रैक्टिकलिटी में नहीं था रियल लाइफ में, राइट। सो नाउ द सेकेंड पार्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर एंड इट्स इवेल्युएशन। कंट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेज ऑफ द असामीज, गुरुमुखी मराठी। अब यू कैन सी हाउ सिंपली आई हैव रिटन लाइक 4-5 वर्ड्स में उसका कंट्रीब्यूशन बताया, उसके बाद मैंने उसके एग्जाम्पल्स कोट किए हैं। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस। सो एनरिच म्यूजिक, डांस एंड फोक कल्चर, जैसे कीर्तन, दोहेज, कव्वाली, सतारिया डांस, ये सारे क्या कहते हैं भक्ति मूवमेंट के पार्ट थे, भक्ति लिटरेचर के पार्ट थे, कंट्रीब्यूशन था। इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम, सूफी सेंट्स, दरगाह ओपन फॉर ऑल, these are some practical examples, right? Further enriched the Indian philosophical sciences, जैसे रामानुजाचार्य की विशिष्ट अद्वैत। इनफैक्ट ये तो PYQ भी था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, राइट। सो PYQs को करने का ये भी फायदा है कि आपको एग्जाम्पल्स, मेजर थीम्स आपको पता रहती हैं, दैट यू कैन कोट इन योर आंसर्स, राइट। एंड सिमिलरली इसका फिर मैंने क्या कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स दे दिया। अब इसमें स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आए, आपको बेझिझक होकर एक टेबल बना देनी है, जहाँ पर एक कॉलम में आप उसका नेचर बताओगे, जो भी फैक्ट्स हैं वो प्रेजेंट करोगे, एंड देन यू विल इवैल्यूएट इट कि भाई ये इसके प्रोज थे या ये कॉन्स थे, right? Acceptance of orthodoxy in real life, poor condition of women, for example देवदासी सिस्टम को भी इसने प्रमोट किया काइंड ऑफ, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज टू मैनेज डाइवर्स लिंग्विस्टिक सोसाइटी, दिस इज सिंपली इसी का है कि डाइवर्सिटी आएगी तो डाइवर्स चैलेंज में वो चैलेंज क्या देगा सोसाइटी को, राइट। अब वी हैव टू कंक्लूड दिस, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और भक्ति लिटरेचर का पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म, इट कैन बी सेड दैट भक्ति लिटरेचर, अब इट कैन बी सेड दैट, राइट, बेस्ड ऑन आवर आर्ग्यूमेंट, बेस्ड ऑन आवर इवैल्यूएशन, तो वी कैन से दैट कि इन स्पाइट ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म, it can be said that Bhakti literature still had a massive impact in making Indian culture truly composite based on a spirit of humanism, localism, and devotionalism. Right. So this I believe will be a very good answer for this, a holistic answer for this, because इसमें हमने सारे parts cover किया, हमने evaluate, we have done justice with the directive word evaluate किया है, plus we have addressed both part, like the nature of Bhakti literature and its contribution to Indian culture, right. So this is the question. Now based on this, this is simply a list for your knowledge. If you are interested, then give food for thought for these broad topics. And कभी भी आप कुछ पढ़ते हो, for example literature is something, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि आर्ट एंड कल्चर में आर्ट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, देन आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसी से रिलेटेड है, मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है कि लिटरेचर बाय फॉरेनर्स, इस पे सवाल आ चुका है, पर्शियन लिटरेचर पे आ चुका है, चाइनीज़ फॉरेनर ट्रैवलर्स पे आ चुका है, अरेबिक फॉरेनर ट्रैवलर पे आ चुका है, इंडिजिनियस लिटरेचर में सारे आ जाएंगे, वैदिक कल्चर से लेकर बुद्धिज्म, जैनिज्म, संगम, भक्ति, साइंटिफिक, ये सारी लिटरेचर आ जाएगा। एंड अभी क्या कहते हैं बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर से पूछ सकते हैं सवाल। देन वी हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी कि संगम लिटरेचर पे सवाल आ जाए, बिकॉज अभी तक नहीं आया संगम लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर इज ऑलरेडी डन, राइट। देन साइंटिफिक लिटरेचर, ऑल दोज मैथमेटिक्स पे क्या चला था, फिर आपका एस्ट्रोलॉजी पे क्या था, फिर क्या कहते हैं मेडिसिन पे क्या क्या था, राइट। सो जस्ट मेक अ लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट बन जाएगी जिसमें आपके थोड़े एग्जाम्पल्स होंगे। सो एग्जाम्पल्स ही आपको जिताएंगे, एज एन टू विन ओवर मार्क्स, राइट। फिर गुप्ता में संस्कृत लिटरेचर को गोल्डन एरा मानते हैं, क्यों कहते हैं कि वाई, कालिदास थे वहाँ पर, और भी बहुत सारे थे, राइट। फिर सिमिलरली विजयनगर एम्पायर लिटरेचर, मुगल लिटरेचर। तो जस्ट व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, तो एक मेंस पर्सपेक्टिव के लिए दिस माय सजेशन कि आप इनकी एक लिस्ट बना लें, शॉर्ट लिस्ट बना लें, राइट, सो दैट आपको हैंडी हो वाइल गिविंग
answers, right, while preparing for this topic, preparing for art and culture, especially art and culture for GS1, right. फिर this is something I believe ये आ सकता है by interlinking freedom struggle literature, because if you read the syllabus of Indian heritage and culture, तो उसमें ये लिखा है कि art forms, literature, architecture from ancient time to modern time, right. तो this is something UPSC can also एक बाउंसर फेंक सकता है आपको कि हाउ दे हैव इंटरलिंक बिटवीन द टॉपिक, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.